हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कोयल आतर। सो आज हम बात करेंगे मिशन परिचारिका 2.0 जिसमें कि PYQS दिया हुआ था। तो मैं उसमें से आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो वन लाइनर शॉर्ट PYQS जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग इस बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग फ्री में यहाँ से देख सकते हैं। आई होप सबको इससे हेल्प मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट PYQ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ASHA, that is accredited social health activist, is working under NRHM program for 1000 population. Second is the committee which was appointed in 1974 by the Government of India under the Ministry of Health and Family Planning for Medical Education and Supporting Manpower is known as the Srivastav Committee. Srivastav Committee 1975 is also known as Medical Education and Supporting Manpower. Srivastav Committee 1975 में अपॉइंट किया गया था जो कि मेडिकल एजुकेशन सपोर्टिंग मैन पावर के नाम से जानती है। ओके, सो जब भी क्वेश्चन पूछे कि मेडिकल एजुकेशन सपोर्टिंग मैन पावर कमेटी कौन है तो वो श्रीवास्तव कमेटी होगा। टेटनस इम्यूनोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। टेटनस इम्यूनोग्लोबिन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ऑकल ब्लड इन स्टूल इज गुइक एसिड गुइक टेस्ट। Which contraceptive method that also offer protection against sexually transmitted infection is condom. Next is MRSA, that is methicillin resistant Staphylococcus aureus, is spread through direct contact. So when caring a client with MRSA, while should be use PPE that consisting gown, gloves and mask. MRSA जो methicillin resistant Staphylococcus aureus है वो spread करता है direct contact के through. So whenever client is a client with MRSA, while should be use PPE. अगर कोई हेल्थ केयर गिवर अगर किसी क्लाइंट को MRSA हो जाता है तो he or she should be use PPE that consisting gown, gloves and mask. The epidemiological triad of disease causation refers to agent, host and environment. Epidemiological triad का जो disease causation वो तीन चीज़ों के ऊपर based है, that is agent, host and environment. Census is taking usually in every 10 years since 1872. 1872 के बाद से मतलब 10 साल के अंतर्गत सेंसस लिया जाता है। The first complete census of India was conducted in 1881. Both birth and death are to be registered within 21 days. Birth and death rate register होना चाहिए 21 days के अंदर। Okay. Integrated Child Development Service Scheme ICDS was started in which year is 2nd October 1975. Mission Parivar Vikas is initiated for improvement in which services is family planning. Mera Haspatal mobile based application and web portal is initiated for patient feedback. What is the name of the vaccine against cervical cancer? Is HPV vaccine. World Population Day everywhere is celebrated on 11th July. Okay, what is a Antara? It's an injectable contraception. ठीक है। So आप अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन के PYQS पढ़ा है उसमें से आगे में इन ब्रैकेट में दिया हुआ है कि किस साल को और किस एग्जाम में ये आया था ना, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट TB विद 0 डेथ बाय 2025। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इन शॉर्ट PMSMA was launched on 2016. Route of administration and dose of BCG vaccine for a 3-month-old baby are intradermal 0.1 ml. Dose and route of administration of rotavirus vaccine is 5-drop oral. Restriction on the movement of people to prevent the spread of disease is called quarantine. The most common cause of death due to diarrhea is dehydration. The first case of COVID-19 infection reported in India was from Kerala. केरला में सबसे पहले फर्स्ट COVID-19 का केस आया था, रिपोर्ट हुआ था। ठीक है। So the principle of delivery of comprehensive primary health care services being time to care is to be not more than how many duration is only 30 minutes and not more than that. Next is number of visits in home based newborn care in case of home delivery is 7. ठीक है। So number of home visit newborn care के लिए होम डिलीवरी के लिए ओनली 7 है और नंबर ऑफ विजिट्स इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज 6. सो अगर होम डिलीवरी बोले तो 7 और अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोले तो 6. फर्स्ट केस दैट कम्स टू नोटिस ऑफ फिजिशियन इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स केस which form is filled by healthcare worker as sub-health center under IDSP program is Form S. S form is reporting format for syndromic surveillance filled by health worker. S form
कौन रिपोर्ट करता है? हेल्थ वर्कर फिल करते हैं। पी फॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर प्रिजम्पटिव सर्विलियंस फिल्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। प्रिजम्पटिव सर्विलियंस कौन फिल करता है? मेडिकल ऑफिसर, वो पी फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और सिंड्रोमिक सर्विलियंस जो कि एस फॉर्म के नाम में जाना जाता है, वो फिल्ड होता है बाय यानी हेल्थ वर्कर। ठीक है। L1, L2, L3 फॉर्म्स, ये सारे रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर लेबोरेटरी सर्विलियंस। L1, L2, L3 ये लैब सर्विलियंस के लिए जाना जाता है। W फॉर्म मीन्स रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। W फॉर्म मीन्स वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाएगा, which is filled by health workers and lab personals at PHC लेवल। PHC लेवल में जितने भी हेल्थ वर्कर हैं और जो लैब पर्सनल्स हैं, जो लैब में काम करते हैं, वो W फॉर्म में रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करेंगे इन CHC लेवल में। L फॉर्म इज डिजाइन टू कलेक्ट डेटा ऑन लैब केसेस। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस? टोटल ड्यूरेशन क्या है? टोटल ड्यूरेशन होगा 18 से 24 मंथ। Syphilis is a complex systematic sexually transmitted infection caused by a spirochete. Which application is used for TB program? TB प्रोग्राम के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है? इसका नाम है निक्षय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा। HMIS पोर्टल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2008। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? कौन कौन सा डिजीज इराडिकेट हुआ था इंडिया से? तो वो है स्मॉल पॉक्स, गिनिया वोम, पोलियो एंड योर्स। व्हेन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री is on 27th March 2014. How many NFHS has been successfully completed in India till now? Are 4. In the demographic cycle is high stationary stage is characterized by high birth rate and a high death rate. Demographic cycle कब हाई स्टेशनरी में जाती है? वो कैरेक्टराइज्ड होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई स्टेशनरी स्टेज कब होता है? जब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई में हो इन डेमोग्राफिक साइकिल। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर 10,000. Then the concept of primary health care was recommended by भोर कमेटी। जब भी बोले कि द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर किसने रिकमेंड किया था, तो वो भोर कमेटी द्वारा दिया गया था। ICDS मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इन विच कम्युनिकेबल डिजीज द एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव? एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट किस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज में पॉजिटिव आएगी? वो है ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी में। Inanimate objects that can transmit the disease are termed as fomites. Persons or animal or objects from which the infectious is transmitted is known as source. किसी भी पर्सन और जानवर या कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है तो उस चीज़ को सोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो सोर्स इसमें क्या हुआ? पर्सन हुआ, एनिमल हुआ और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से इन्फेक्शियस एजेंट का ट्रांसमिट हो रहा है, वो सोर्स कहलाएगा। लक्ष्य प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ईयर is on 11th December 2017. Deep freezer temperature is -15 to -20 degree Celsius. BCG vaccine once constituted should be used within 4 to 6 hours. BCG वैक्सीन अगर एक बार उसका वायर खोला गया तो वो उसको विदिन 4 to 6 hours के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। When the diarrhea lasts for more than 14 days it is called persistent diarrhea. ठीक है, अगर कोई डायरिया मोर देन 4 डेज मतलब 14 दिन के बाद भी लगातार हो रहा है तो उसको परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे। व्हाट इज द प्रपोज टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मदर्स अकॉर्डिंग टू द माइक्रो बर्थ प्लान ऑफ जननी सुरक्षा योजना? इन शॉर्ट JSY आर at least 20 to 24 weeks before the expected date of delivery. The National Adolescent Health Program was launched in the year 2014. नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2014 में। द एम ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान इज टू बी एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने का जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार किया गया वो कब तक किया जा चुका है? 2025 तक लेने का निश्चय किया गया है। ठीक है। एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अकरिंग ओवर अ वाइड जोग्राफिक एरिया सच एज कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड इज कॉल्ड पैंडेमिक. Suman scheme launched by Union Government at New Delhi on 10th October 2019 aims to reduce the maternal and infant mortality rates in the country and stop all preventable maternal and infant death rates. जो सुमन स्कीम लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो न्यू दिल्ली में किया गया है 10th अक्टूबर को
2019 में ये लॉन्च किया गया था बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसका एम क्या है? टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। जितने भी मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करने का संकल्प लिया गया है इन द कंट्री एंड टू स्टॉप ऑल प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ्स। नेक्स्ट इज द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। रेगुलरली बीपी मॉनिटर किया जाने का जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो किस लेवल में आता है? इज नोन एज सेकेंडरी में आएगा। हाउ मेनी डिजीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कितने डिजीज को कवर करने का कार्य किया जाता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में? सो टोटल इसमें 7 बताया गया है। नेक्स्ट, डिजीज प्रिवेंटेड अंडर एनबीवी डीसीपी आर मलेरिया, जापानीज एनकेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार एंड लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। The national health program that aims to reduce maternal mortality among pregnant women by encouraging them to deliver in government health facilities is called Janani Suraksha Yojana. The route of administration of DPT vaccine is intramuscular. DPT vaccine कैसे एडमिनिस्टर, कौन से रूट में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा? इज IM, ठीक है, इंट्रामस्कुलर। पेंटावलेंट वैक्सीन इज गिवन एट 6, 10 एंड 14 वीक्स। पेंटावलेंट वैक्सीन कब दिया जाना चाहिए? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में। मीजल्स इज कॉज बाई RNA पैरामिक्सो वायरस। मीजल कैसे कॉज होता है? बाई RNA पैरामिक्सो वायरस से। सुमन इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। अगर पूछे कि सुमन इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कवर किया गया है तो आप बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। हर साल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के लास्ट सप्ताह में। हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड हाईली थर्मोलेबियल वायरस इज हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस क्या है? इट्स एन हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड हाईली थर्मोलेबियल इज हर्पीस वायरस। VHSNC, Village Health Sanitation and Nutrition Committee, should have a minimum of 15 members. VHSNC में minimum 15 members होने चाहिए। Dead end host of Japanese encephalitis is man. The policy is to keep indoor patient records for 10 years. 10 साल तक हम किसी पेशेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। डम्पा, that is DMPA, is an injectable contraceptive given every 3 months. Every 3 months हम DMPA जो हम बोल सकते हैं डम्पा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो हम एवरी 3 मंथ्स दे सकते हैं। द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर। पंचायती राज 3 टायर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्या है? पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेशनल डी वार्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th Feb। एवरी ईयर 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग क्लोरीन का टेस्ट कैसे किया जाता है? बाय ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट द्वारा। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट एज ऑफ 9 मंथ। 9 महीने के अंतराल हम विटामिन ए का फर्स्ट डोज देते हैं। व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री बाय SEAR WHO इज ऑन 27 मार्च 2014। हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा गया है? एडवर्ड जेनर को। द HIA टेस्ट फॉर डेंगू स्टैंड्स फॉर हेमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन assay। Workers of the coal, lead, gold and mica industry can suffer from silicosis. The level of care in which care is generally provided in district hospitals and community centers at block level is known as secondary level. Ayushman Bharat Divas is celebrated on which day every year? Is on 30 April. Ayushman Bharat Divas हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। India's first indigenously developed vaccine for prevention from cervical cancer is Cervivac. When is celebrating World Health Day? World Health Day celebrate कब किया जाता है? Is on 7th April. Most common cause of under 5 mortality is pneumonia. Under 5 mortality में जो most common cause हो सकता है वो है pneumonia. A CHC Community Health Center has an indoor facility of 30 beds. 30 beds की facilities दी जाती है इन community health center में. At which state does India stand in the demographic cycle? Is late expanding. Japanese encephalitis is transmitted by Culex mosquito and incubation period of measles is 10 days. यहाँ में 10 days लिखा गया है, आप 10 to 14 days भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1985। 1985 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पेंटावलेंट वैक्सीन कंटेन्स 5 डिजीज वैक्सीन। as from the name only, pentavalent vaccine, penta means 5, तो आप बोल सकते हो 5 disease vaccine
यूज़ किया जाता है. इन विच डिजीज एलिफेंटॉइड फीवर ऑकर. एलिफेंटिसिस और एलिफेंटॉइड फीवर किससे होता है? फाइलेरिया के नाम से जानते हैं. व्हाट इज़ द डोज ऑफ एल्बेंडाजोल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 2 to 19 ईयर्स. 2 से लेकर 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनमें एल्बेंडाजोल का डोज कितना होगा? वो है 400 mg. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP इन विच ईयर इज 1982. हु इज़ द फादर ऑफ एपिडियोमोलॉजी? इज जॉन स्नो. जॉन स्नो को फादर ऑफ एपिडियोमोलॉजी कहा गया है. नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 22 May 1987. व्हाट इज सेफ स्ट्रैटेजी? सेफ स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं? तो S स्टैंड फॉर सर्जिकल केयर, A स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक्स, F स्टैंड फॉर फेशियल क्लीननेस एंड E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट. तो क्या क्या आ जाएगा? सर्जिकल केयर, A एंटीबायोटिक्स, F फेशियल क्लीननेस एंड E इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट. अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन विच copper T was introduced in 2002 with an efficacy up to 10 years is copper T 380A. छाया और सहेली इट इज ऑर्मिलोसिक्फेन और सेंटक्रोमेनिस ए नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव. छाया और सहेली क्या है? ये ऑर्मिलोसिक्फेन और सेंटक्रोमेनिस एक नॉन हार्मोनल और नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है. छाया, a single tablet should be taken twice a week, Sunday and Wednesday, first 3 months, and then once a week, weekly, every Sunday. First pill is taken on the first day of the period. ठीक है. So माला N, it is supplied in government health centers like in sub-center, PHC और CHC. माला N government health centers में सप्लाई किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब सेंटर्स में, PHC और CHC में. माला N कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है? इथेनिल एस्ट्राडियोल होता है जिसमें 30 यूग्राम और 0.03 मिलीग्राम नॉर्जेस्ट्रॉल लोवोनर्जेस्ट्रॉल रहता है, 0.03 mg रहता है. और माला डी में इट इज़ अवेलेबल एट रजिस्टर्ड मेडिकल शॉप्स एज अ OTC ड्रग जैसा सप्लाई किया जाता है कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल शॉप में. और माला इन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में सप्लाई किया जाता है, जैसे सब सेंटर PHC एंड CHC हो गया. सो माला डी का कंपोजिशन है, फर्स्ट इज लेवोनर्जेस्ट्रॉल 0.15 mg, इथेनिल एस्ट्राडियोल लेवोनर्जेस्ट्रॉल 0.15 mg रहता है, और इथेनिल एस्ट्राडियोल 0.03 माइक्रोग्राम टू और 30 मिलीग्राम होता है. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज 10 to 14 days. ये पहले भी हमने पढ़ा है. सो कॉप्लिक स्पॉट्स कहाँ देखा जाता है? मीजल्स में. कॉप्लिक स्पॉट इज हॉलमार्क साइन ऑफ मीजल्स. RBS के 4 Ds वर्सेस डिफेक्ट्स ऑफ बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज डेवलपमेंट, डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज. सो RBS के जो स्कीम है उसमें 4 Ds दिया गया है, दैट इज डिफेक्ट्स एट बर्थ. 4 Ds में क्या क्या है? फर्स्ट D होगा डिफेक्ट्स एट बर्थ, देन सेकंड D डेफिशिएंसी, थर्ड D डिजीज एंड फोर्थ D डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी. हाउ मेनी हेल्थ कंडीशंस आर कवर्ड अंडर RBS के फॉर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट इज 30. तो टोटल 30 हेल्थ कंडीशंस कवर किया गया है RBS के में. ठीक है. लास्ट स्मॉल पॉक्स केस इन वर्ल्ड रिपोर्टेड इन 26 October 1977 इन सोमालिया. जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आया था लास्ट स्मॉल पॉक्स का, जो 26 अगस्त को देखा गया था 1977, वो कहाँ देखा गया था? सोमालिया में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया इन 23 अप्रैल 1977. उसी साल 23 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित किया गया था इंडिया में. ठीक है. WHO डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री वर्ल्ड इन 8 May 1980. और WHO ने डिक्लेयर किया था पूरे वर्ल्ड वाइड में कि स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया है बोल के. सो इट्स ऑन 8 May 1980. The most common cause of death due to diarrhea is again dehydration. The National Leprosy Control Program was launched by the Government of India in 1955. National Vector-Borne Disease Control Program was launched to control malaria. National Vector-Borne Disease Control Program launch किया गया था ताकि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके. Dose of BCG at birth is 0.05 ml and after 1 month's dose should be doubled, that is 0.1 ml. At sub-center level, drug kit A, drug kit B, midwifery kit A for A&M and sub-center equipment kit C. At PHC level, PHC equipment kit D दिया जाता है. At CHC level, kit E to P all supply at CHC level. Next is 6 diseases are prevented by IMNCI are acute respiratory disease, that is ARDS. Second is diarrhea. Third is measles. 4 is malaria. 5th is malnutrition, and 6th is preterm babies and sepsis. One urban primary health center, that is UPHC, for every 50 to 60,000 population.
1 auxiliary nursing midwives ANM for 10,000 population. Next is 1 accredited social health activists, that is ASHA, for 200 to 500 households. The RDTS kit for malaria shows positive result when the presence of 2 color bands are present, that is P test line and C control line. मलेरिया पॉजिटिव रिजल्ट शो तभी करेगा जब पी टेस्ट लाइन एंड सी कंट्रोल लाइन दोनों में ही कलर्स प्रेजेंट होंगे. डेंगू वायरस इज एन आर्बोवायरस. आर्बोवायरस को ही हम डेंगू वायरस के नाम से जान सकते हैं. डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन. विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड मलेरिया. मलेरिया में कौन सा ऑर्गन सबसे पहले अफेक्ट होता है? स्प्लीन. स्प्लीन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है. मोस्ट कॉमनली यूज टीचिंग मेथड इज लेक्चर मेथड. National Program for Health Care of Elderly (NPHCE) covers beneficiaries above the age of above 60 years. National Tobacco Control Program launched by Government of India in 2007 to 2008. Next, ASHA worker does home visit for home-born delivery babies up to 42. The Lakshya initiative is for making quality labor room. लक्ष्य इनिशिएटिव क्यों लिया गया था? ताकि एक क्वालिटी लेबर रूम प्रदान किया जा सके मदर्स को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको. Within how many hours emergency contraceptive pills should be taken? Is 72 hours within unprotected intercourse. VHND is organized once a month on fixed day and fixed place. Model of epidemiological triad is known as agent, host and environmental factors. Anti-malaria month is celebrated in the month of every June. Every year जून को anti-malaria month celebrate किया जाता है. Ideal time for female sterilization or tubectomy is on in proliferative phase, because just in this phase reduce the risk of that the woman will be pregnant at the time of the surgery. ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है. इस मतलब पूछा गया है कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन का आइडियल टाइमिंग क्या होता है और ट्यूबेक्टोमी के लिए कौन सा फेवरेबल टाइम और आइडियल टाइम कौन सा होता है. तो आप टिक करेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज को. प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज इंडियन प्रेसिडेंट. How much potassium chloride is present in ORS solution is 0.5 gram. Okay, so ORS में जितने भी कॉम्पोजिशन आप देखते हैं उसको आप अच्छे से याद कीजिएगा. ठीक है, ORS पैकेट के ठीक पीछे उसके सारे कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेंगे, तो एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज फर्स्ट वैक्सीन डेवलप अगेंस्ट विच कम्युनिकेबल डिजीज इज स्मॉल पॉक्स. द बेस्ट पैरामीटर फॉर assessment of chronic malnutrition is weight for height. The Panchayati Raj consists of which 3-tier structure? We all know is Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jila Parishad. Sustainable development goals and targets are to be achieved by 2030. Zinc supplementation in diarrhea 20 mg per day for children older than 6 months for 10 to 14 days. Zinc supplementation in diarrhea 10 mg per day in those younger than 6 months for 10 to 14 days. Zinc supplementation डायरिया में दिया जाता है. यहाँ में दोनों एज ग्रुप के बच्चों के बारे में बोला गया है. अगर 20 mg पर डे बोला जाए तो वो चिल्ड्रन हु आर ओल्डर देन 6 मंथ, मतलब जो कि 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे हैं, जिनका एज 6 मंथ से ऊपर हो गया है, उनको 20 mg पर डे दिया जाता है फॉर 10 से 14 दिन के लिए. और जो बच्चे 6 मंथ से यंगर है, 6 महीने से छोटे हैं, उनको 10 mg पर डे दिया जाता है फॉर 10 to 14 डेज. चलिए, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, ये भी देख लेते हैं. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के महीने में जो फर्स्ट मंडे आएगा उस दिन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज कैटरेक्ट. ऑल स्टेजेस ऑफ रैशेज आर सीन इन चिकन पॉक्स. यूजुअली सेंसस मेंटेन इन द हॉस्पिटल एट नाइट. यूजुअली जो सेंसस जो मेंटेन किया जाता है वो नाइट में किया जाता है हॉस्पिटल में. BCG वैक्सीन कैन बी गिवन अप टू विच एज ग्रुप इज 1 year. ओपन वायल पॉलिसी डज नॉट अप्लाई टू मीजल्स, BCG एंड जापानीज इनकम्फ्लाइटिस वैक्सीन्स. जो ओपन वायल पॉलिसी है वो किसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, तो वो है मीजल्स, BCG और जापानीज इनकम्फ्लाइटिस वैक्सीन के ऊपर. साउथ ईस्ट एशियाज WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट दिल्ली. दिल्ली में साउथ ईस्ट एशिया जो WHO रीजनल ऑफिस है वो स्थित है. द रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज टू मॉनिटर ग्रोथ. प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज इज चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज कोल्ड चेन. द रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन फॉर एस्कारियस इज फाउंड ओनली इन मैन. द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंसिडेंस. जब भी बोले कि नंबर ऑफ न्यू केसेस
हो रहा है इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन में ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको हम इंसिडेंस बोलेंगे। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स इज हर्पीस जोस्टर, और वेरिसेला जोस्टर भी बोल सकते हैं। What is the recommended dose series for hepatitis V vaccination for healthcare workers is 0, 1 and 6. A sudden outbreak of disease in the entire country. अगर किसी डिजीज का सडन आउटब्रेक हो जाए वर्ल्ड वाइड तो उसको क्या बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे। और अगर इंडेमिक बोले तो वो एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया में होगा। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल वैक्सीन हैज़ टू बी यूज्ड विद इन 4 आवर्स। जो मीजल्स वैक्सीन है उसको हमें 4 आवर्स के विद इन ही यूज़ किया जाना चाहिए। An outbreak of a disease in an animal population is known as epizooty. अगर कोई डिजीज आउटब्रेक हुआ है इस एनिमल पॉपुलेशन के अंदर में, उसे एपिजूटिक बोलेंगे। द फूड सप्लीमेंट्स इन द मिड डे मील स्कीम शुड प्रोवाइड अ मिनिमम ऑफ 300 कैलोरीज विद 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इनेट इम्यूनिटी मीन्स द रेजिस्टेंस दैट इंडिविजुअल पॉजेस बाय बर्थ। इनेट इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, जो इंसान नेचुरली रेजिस्टेंस पॉजेस किया हुआ है फ्रॉम द बर्थ ओनली, जन्मगत जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे उसे इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। द डिसेमिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एरोसोल्स टू अ सुटेबल पोर्टल ऑफ एंट्री यूजुअली द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड एयरबॉर्न। डिसेबिलिटी लिमिटेशन रिहैबिलिटेशन कम्स अंडर टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन के अंतर्गत डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन केयर आएगा। द डिजीज नोन एज प्लेग वॉज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स बाय रैट फ्लीस। तो प्लेग किससे ट्रांसमिट होता है, थ्रू रैट फ्लीस से। ट्रेपोनेमल टेस्ट इज डन टू डायग्नोस साइफिलिस। Then, according to BMWM, used needle is discarded in which color of bag is white bag. Needle हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, कौन से BMW बीन में is white bag. Which condition is presented by the presence of strawberry tongue? Strawberry tongue हमें किस में देखने को मिलेगा, इस कावासाकी डिजीज में। Next is human papilloma. Organism are responsible for genital warts. Genital warts हमें human papilloma organisms में देखने को मिलेगा और वही रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर जेनिटल वार्ड्स। द वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वॉज डेवलप्ड बाय जोनस सॉल्क। इन विच सेंचुरी द वाइटल स्टैटिस्टिक्स वॉज ओरिजिनेटेड इज 19th century। 19th century में वाइटल स्टैटिस्टिक्स से ओरिजिनेट हुआ था। द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज एनीमिया। मैटरनल मृत्यु जो होता है वो इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होगा, इस एनीमिया होगा। इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी पार्ट्स शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो कलर्ड बैग। येलो कलर बैग में ब्लड और बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा जो भी डिस्कार्ड किया जाता है वो येलो बीन में किया जाता है। और इससे पहले क्या पूछा गया था, नीडल, तो नीडल हम वाइट कलर्ड बैग में डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनिलियासिस इज कैंडिडा एल्बिकन्स। मोनिलियासिस में कौन सा कॉजेटिव एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो है कैंडिडा एल्बिकन्स। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर कैंक्रोइड इज हेमोफिलस डुक्री। नेक्स्ट इज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर न्यूबॉर्न डेथ विद इन 28 days। मिड ईयर पॉपुलेशन टेकन फ्रॉम विच डेट इज 1 जुलाई। 1 जुलाई को मिड ईयर पॉपुलेशन लिया जाता है। द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड प्राइमरी केस। कोई भी एपिडेमिक होता है तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन सिक होता है, जो बीमार रहता है, उसी को एज अ प्राइमरी केस बोला जाता है और लिया जाता है। अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम IUCD 380 कॉपर टी वुड बी इफेक्टिव फॉर 10 years। सो 10 years तक इफेक्टिव रहता है। The nurses are participating in a healthcare at a local mall and the nurses are participating in a health fair at the local mall and are giving influenza vaccine to senior citizen. What level of prevention are the nurses is practicing? Is primary prevention. COVID-19 vaccine administration is which level of prevention is primary prevention. Which is an amplifier host in Japanese encephalitis is pigs. Next is a pap smear and colposcopic examination for the early detection of cervical cancer and papilloma virus infection is an example of secondary prevention. पैप स्मीयर करना और कोल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन करना जो कि अर्ली डिटेक्शन में आता है फॉर सर्वाइकल कैंसर, वो आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। CDC recommends children get 2 doses of MMR vaccine starting with the first dose at 12 through 15 months of age and the second dose at 4 to 6 years of age. ओके, सो MMR में 2 डोज दिया जाता है, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट डोज दिया जाता है वो 12 through 15 months तक दिया जाता है और जो सेकेंड डोज होता है वो 4 to 6 years of age में दिया जाता है। विच इज़ अ वेक्टर ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर दिस हार्ट टिक। ऑल विजिटर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू केन्या, Uganda, Rwanda, Nigeria, Mali, Ghana and Ethiopia are required to be vaccinated against which vaccine with an international certificate proving so is yellow fever. Total doses required for Covishield vaccine in healthcare worker is 3. कोविशील्ड वैक्सीन का टोटल जो डोज रिक्वायर होता है फॉर एनी हेल्थ केयर वर्कर वो है 3 doses ऑफ वैक्सीन।
Most common STD in men is chlamydia. SARS is single stranded RNA virus. So full form of SARS is single stranded RNA virus. Next is under National Anemia Mukt Bharat program, which statement is true about deworming program? So it is a biannual deworming tablets डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम. ये क्या है? एक बाईमैनुअल डिवॉर्मिंग टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है. क्रिसेंट शेप्ड और बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट्स आर सीन इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. क्रिसेंट शेप्ड और बनाना शेप्ड जो गैमेटोसाइट्स देखने को मिलेगा वो किसमें देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में. माइट इज द वेक्टर फॉर स्क्रब टाइफूस. स्क्रब टाइफूस का वेक्टर क्या है? माइट है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स का PIQS जो मिशन 2.0 में दिया गया है उसको मैं कवर करूँगी. ठीक है. तो आप मेरे साथ रहिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने ला सकूं और आपको भी हेल्प मिले. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. प्रिपरेशन अपना जारी रखिए. थैंक यू.